Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, today we are going to discuss a very important aspect of the human physiology, which is concerned with some chemicals secreted by the particular structures which are called endocrine glands. These chemicals, these are called hormones. hormones कहते हैं और ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करती हों उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. There are many endocrine glands in our body. All these glands, they will constitute an endocrine system. The various endocrine glands of our body, they are hypothalamus. आपको पता होगा हमने hypothalamus पढ़ा था. फोरब्रेन में डाइएन्सेफेलॉन का भाग hypothalamus. My dear friends, attached to the hypothalamus is the smallest gland of our body, which is called pituitary gland. Pituitary gland is there. मैं आपको बता दूं, pituitary gland is called master gland because it controls and regulates the function of the other endocrine glands and the other organs. Hypothalamus, as it controls the pituitary gland functioning, so it is also called supramaster gland or master of master gland. ये मास्टर ग्लैंड होता है. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, ओके, देन पैराथायराइड ग्लैंड, adrenal glands. We will discuss them one by one. Their function, what function they control, what is their structure, how they function, what kind of cells are present, what kind of the hormone they secrete. It is all the matter of our discussion in the further lectures. Adrenal gland, then thymus. मैं कुछ एक मेजर्स की बात कर रहा हूँ. Thymus gland, then good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, today we are going to discuss a very important aspect of the human physiology, which is concerned with some chemicals secreted by the particular structures which are called endocrine glands. These chemicals, these are called hormones. Hormones कहते हैं और ऐसी glands जो हार्मोन सीक्रेट करती हों उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. There are many endocrine glands in our body. All these glands, they will constitute an endocrine system.
The various endocrine glands of our body, they are hypothalamus. आपको पता होगा, हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था, फोर ब्रेन में डाइएन्सेफेलॉन का भाग हाइपोथैलेमस. My dear friends, attached to the hypothalamus is the smallest gland of our body, which is called pituitary gland. Pituitary gland is there. Now बता दो, pituitary gland is called master gland because it controls and regulates the function of the other endocrine glands and the other organs. Hypothalamus, as it controls the pituitary gland functioning, so it is also called supramaster gland or master of master gland. ये master of master gland होता है. Hypothalamus, pituitary, thyroid gland, okay, then parathyroid gland, adrenal gland. We will discuss them one by one. Their function, what function they control, what is their structure, how they function, what kind of cells are present, what kind of the hormone they secrete. It is all the matter of our discussion in the further lectures. Adrenal gland, then thymus. मैं कुछ एक मेजर्स की बात कर रहा हूँ. Thymus gland, then thymus gland. Beside thymus gland are reproductive organs, gonads. Testes in case of males and ovaries in case of female. They also behave as an endocrine gland, secreting some hormones. Then heart, the blood pumping organ of our body, it also behaves as an endocrine gland. Then kidneys, the filtration organ of our body. These are some examples of the endocrine glands. एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है और कितनी तरह की ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होती हैं? सी हियर, सबसे पहली बात तो कि व्हाट आर ग्लैंड्स. पहला प्रश्न तो ये है कि ग्लैंड्स होती क्या है. तो मैं आपको बता दूं, ग्लैंड इज नथिंग, इट इज एन स्पेशल ऑर्गन. स्पेशल ऑर्गन क्यों स्पेशल है? बिकॉज इट सीक्रेट हार्मोन. जो ग्लैंड्स है वे स्पेशल इसलिए है क्योंकि वे हार्मोन सीक्रेट करती हैं और इन हार्मोन्स को वे ब्लड के अंदर पोर करती हैं, डालती हैं और ब्लड उनको कैरी करता है टारगेट ऑर्गन तक. स्पेशल ऑर्गन विच सीक्रेट हार्मोन्स एंड sorry, not hormone, these are endocrine. Special organs which secrete their secretions. मैं तो भी ग्लैंड बता रहा हूं, एंडोक्राइन नहीं. स्पेशल ऑर्गन्स which secrete their secretions
either into blood or directly into, अभी बताऊंगा आपको, टारगेट ऑर्गन क्या होते हैं, टारगेट ऑर्गन ये भी समझाऊंगा। सी ग्लैंड दो तरह की होगी, आप यहां समझ पाएंगे। वन आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड वन आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है मैं आपको बताऊं। सपोज दिस इज एन स्पेशल ऑर्गन और ये कोई दूसरा ऑर्गन या टिश्यू है, इट इज अनदर टिश्यू और ऑर्गन। जो भी केमिकल वो सीक्रेट करेंगी वे डायरेक्टली उस टारगेट ऑर्गन के ऊपर उसको पोर कर देंगे और देयर सीक्रेशंस आर यूजुअली कॉल्ड एंजाइम्स एंड अदर केमिकल्स। एंजाइम्स इनको हम बोल देते हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स which secrete and pour their secretions which are usually enzymes directly into target organ। टारगेट ऑर्गन जो है वो कोई दूसरा ऑर्गन या टिश्यू होता है, वहां को डायरेक्टली डाल देती हैं, तो इसे आप कहते हैं एंजाइम और सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो डालेंगी कैसे अभी देखने वाला विषय। तो अगला प्रश्न आता है कि कैसे डालेंगे। तो इनको पोर करने के लिए इनके पास यहां देखेंगे डक्ट्स होती है। मैं आपको डक्ट दिखाना चाहूंगा तो ऐसे कोई ग्लैंड होगी, वहां से डक्ट आएगी और वो उस टारगेट ऑर्गन को टच करेगी और जो इनकी सिक्रेशंस है वो किसके द्वारा आएंगी, डक्ट के द्वारा आएंगी। डक्ट मीन पाइप। सो फॉर दिस रीजन दे आर आल्सो कॉल्ड द डक्टेड ग्लैंड्स। इनको डक्टेड ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, दिस इज द ग्लैंड, देयर इज द ब्लड सप्लाई, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड इज फ्लाइंग, दे सीक्रेट देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इसके अंदर ब्लड है ना बेटा, ये ब्लड में अपनी सीक्रेशन डाल देते हैं और ब्लड विल कैरी दिस सीक्रेशन टू द टारगेट ऑर्गन which is usually away from what ब्लड जो है ना वो ऐसे सप्लाई करेगा ना, इसको देखो, और यहाँ ब्लड में से वो जो सिक्रेशंस हैं जिन्हें क्या कहा गया था, हार्मोन्स कहा गया था, उसको वो पोर कर देता है। तो यहाँ डक्ट होती है, यहाँ डक्ट नहीं होती है, ये तो सीधे ब्लड में डाल देती है। तो मैं आपको बता दूं दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड डेफिनेशन में आप लिख लेंगे ग्लैंड्स which pour their secretions कहां, into the blood and blood will carry them to target organ। समझिए। तो ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। क्लियर है बात। फिर नाउ दिस सिक्रेशन हियर इज द डिस्कशन इज पर्टिकुलरली द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपने पढ़ी हैं, लीवर पढ़ा है ना, लीवर के बारे में। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लीवर एंड इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। सी हियर
One gland is also there which is called the heterocrine gland. Heterocrine gland is there, gland which have both exocrine as well as endocrine part. बट इसमें दोनों हिस्से होते हैं. ये आपने देखा है, इट्स इन द पेनक्रियास. पेनक्रियास का एक हिस्सा जो है वो एक्सोक्राइन होता है, वो एंजाइम सीक्रेट करता है डाइजेशन में, और दूसरा जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन द इंसुलिन का आपने नाम सुना होगा. डायबिटीज के केस में, डायबिटीज मेलिटस के केस में वो आपने सुना होगा. तो दिस इज एन हेटेरोक्राइन ग्लैंड. Clear? Now, what are hormones? अगर आपसे कोई पूछ देता है कि what are hormones, तो क्या होते हैं hormones? Hormones are nothing. These are the proteinous secretions of endocrine glands. On the basis of position, सुनिएगा ध्यान से, पोजीशन ऑफ टारगेट ऑर्गन. टारगेट ऑर्गन की पोजीशन के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, लोकल एंड नॉन लोकल हार्मोन्स. लोकल हार्मोन्स whose target organ is in the vicinity or in nearby. अगर उनका टारगेट ऑर्गन जो होगा वो नियर बाई होगा तो वो लोकल हार्मोन कहलाएंगे. अगर द टारगेट ऑर्गन इज अवे फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड देन दिस इज कॉल्ड नॉन लोकल हार्मोन्स. ओके, जहां पे जो एक्ट करना है ना हार्मोन्स ने, अगर वो विसिनिटी में एक्ट करते हैं, उनका टारगेट ऑर्गन जो है वो नजदीक है, जहां पे बने वहीं पे नजदीक में एक्ट करेंगे तो वो लोकल हुए, और अगर वो कहीं दूसरी पोजीशन पे जाके एक्ट करेंगे तो वो नॉन लोकल हुए. These are also called the trophic hormones. क्लियर है? लग गया पता? अभी आपको समझाता हूं. दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, यूजली ये प्रोटीन के बने होते हैं. सो one are the proteinous hormone and other one are non-proteinous. Some of the hormones are non-proteinous. They may be lipid or steroidal in nature. Clear है? पर हार्मोन्स होते क्या है? वे सिक्रेशंस होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, ये जानना चाहिए. Now, one more word is there in endocrinology. मैं endocrinology वर्ड यूज कर रहा हूं, ये टर्म्स आपको क्लियर हो बेटा. Endocrinology is nothing. The study of the endocrine glands, their secretion hormones. It is called endocrinology. Clear? Now see the target organ. What is the target organ? See, टारगेट ऑर्गन जो होते हैं वे हार्मोन्स की साइट ऑफ एक्शन होती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन साइट क्या है हार्मोन्स की? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और टारगेट ऑर्गन क्या होते हैं? वो जहां पे वो काम करते हैं, द साइट ऑफ एक्शन ऑफ hormones. The site of action of hormones, it is called target. ये प्राइमरी, अभी समझाता हूं आपको. It may be primary target organ, it may be secondary target organ, it may be
टर्शियरी टारगेट ऑर्गन। मैं आपको थायराइड ग्लैंड और थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उसके साथ मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा कि टारगेट ऑर्गन क्या होते हैं। सी हियर, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ग्लैंड। जो भी ऑर्डर हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं? सिक्रेशन के, वो हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं। हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करेगा। मैं अभी थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए बता रहा हूं। ये रिलीज करेगा TSH-RH। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम TSH है, और TSH स्टैंड फॉर थायराइड, S फॉर स्टिमुलेटिंग, सुनते रहना बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, H से, और R से रिलीजिंग हार्मोन। मैं आपको बता दूं, रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो किसी दूसरे ग्लैंड पे जाके एक्ट करते हैं और वहां से किसी और हार्मोन या सब्सटेंस की सिक्रेशन कराते हैं। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन छोड़ता है, सीक्रेट करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इन्हिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जो है वो दूसरे ऑर्गन पे जाते हैं और वहां पे जाके किसी चीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, और इन्हिबिटर हार्मोन्स होते हैं जो किसी दूसरे टारगेट ऑर्गन पे जाके, किसी दूसरी ग्लैंड पे जाके उसके अंदर जो केमिकल जो बन रहे थे उनकी सिक्रेशन को स्टॉप करवाते हैं। ये देखना है आपने। सो मैंने कहा कि इट विल रिलीज TSH-RH। दिस TSH-RH विल गो एंड एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पे चला गया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या एक्टिवेट करेगा कि आप TSH को छोड़िए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को छोड़िए, रिलीज करवाएगा ना वो। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, बोलेगा थोड़ी वो मुंह से, स्टिमुलेट करेगा और उसके अंदर प्रोडक्शन करवाएगा। और क्या प्रोडक्शन होगा बेटा? इट विल, द पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। This thyroid stimulating hormone will go and act on the thyroid glands. TSH, thyroid stimulating hormone, will stimulate the thyroid gland. For what? To release the thyroxine. ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वो थायरॉक्सिन रिलीज करेगा। कौन करेगा रिलीज? किसने किया? थायराइड। और थायरॉक्सिन का क्या काम है? इट कंट्रोल, इट गो टू द वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज पे जाके एंड इट कंट्रोल बेसिक मेटाबॉलिक रेट, BMR, हमारे जनरल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो हम क्या देख रहे हैं? अगर मैं बड़ी गौर से देखूं तो प्राइमरी जो सिक्रेशन हुआ वो हाइपोथैलेमस का हुआ। प्रोडक्शन साइट ये थी। सबसे पहले जो एक्शन हुआ वो कहां पे हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। दिस इज द, माय डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी टारगेट ऑर्गन। सबसे पहले एक्शन इस पे हुआ, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH छोड़ा, कहां एक्शन हुआ? थायराइड ग्लैंड पे। दिस इज सेकेंडरी टारगेट ऑर्गन। थायराइड ग्लैंड ने थायरॉक्सिन बनाया और कहां पे एक्ट किया? ऑर्गन पे। दिस इज द टर्शियरी टारगेट ऑर्गन। समझ रहे हो बात? लग रहा है पता? तो प्राइमरी टारगेट ऑर्गन हुआ जहां पे सबसे पहले काम हुआ, फिर उसने जो छोड़ा, उसने जो सीक्रेट किया, उसने कहां काम किया? सेकेंडरी। फिर उसने जो सीक्रेट किया वो कहां काम करेगा? टर्शियरी। तो दिस इज द टारगेट ऑर्गन। इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा द रेगुलेशन ऑफ द हार्मोनल एक्शन। It is via feedback system. Regulation of hormonal action. It is with the help of an feedback system of regulation. It
it has two kind of feedback. One is positive feedback, one is negative feedback. Positive feedback basically जो फीडबैक है वो किसी चीज की प्रोडक्शन को शुरू करवाता है और नेगेटिव जो है वो स्टॉप करवाता है. कैसे देखते हैं क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक. सी हियर ऑर्गन और टिश्यू में कैसे जाएगा थायरॉक्सिन. क्या कहा था हमने, जितने भी हार्मोन है कैसे जा रहे हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में. कहां पोर किए जाते हैं, ब्लड में. मैंने कहा था ना ब्लड के द्वारा जाते हैं आगे. तो थायरॉक्सिन भी कहां होगा, ब्लड में. मैं यहां लिख देता हूं ब्लड. देखिए प्रश्न अब एक दिमाग में ये आता है कि कब तक थायरॉक्सिन बनता रहेगा और कितनी क्वांटिटी में बनेगा. हमारी बॉडी में जो भी केमिकल जिस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं सिर्फ उतनी ही ऑप्टिमम क्वांटिटी में बनते हैं. अब इस स्टेज में आके आप देखें जब ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, व्हेन थायरॉक्सिन इज इन ब्लड, when thyroxine is in less quantity as required in blood, जितनी शरीर में चाहिए ना उससे कम होगी ना थायरॉक्सिन की क्वांटिटी, तो क्या होगा, there will be a message that hypothalamus have to secrete TSH/RH. तो TSH/RH आएगा और ये सारा जो प्रोसेस है वो चलेगा. जब ये समझिए ना, जब ब्लड में सिगरेट तो हो रहा है, होता रहेगा. एक स्टेज आएगी जब ज्यादा हो जाएगा. When thyroxine is more in blood or is in higher quantity in blood than required, जरूरत से ज्यादा शरीर में जरूरत नहीं है, ब्लड में ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, the message will be there that the hypothalamus have to stop this secretion of TSH/RH. तो इसने इसको बंद करवा दिया और इसने इसको शुरू करवा दिया. तो ये जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है और ये जो है वो नेगेटिव फीडबैक है. So the hormonal control, regulation of hormonal action is under a feedback system which is positive and negative. Clear है? And the action of the various glands, it is controlled by the hypothalamus, which is the floor of the diencephalon, and it is the supramaster gland or the master of the master gland. In the further discussion, we will discuss about the functioning of hypothalamus, functioning of the pituitary gland, and the various other glands, thyroid, parathyroid, adrenal, what are their function, how they control our functioning of our organs and the body. What is the effect of the hormones on the physiology of our organs or body. So, thanks for today. Meet with you all in the next lecture. Till then, bye to all. Subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay and press the bell icon surely. Thank you.